Anyone have any problem in chapter 20, children? Tell me in chat box. Decimal. We have already familiar with the decimal, children. You know now about decimal. 27.23, 10.20, and we have put the decimal in the process of divide, है ना? Okay. Here are decimal is a fraction. Okay. What is the decimal? Decimal is the fraction. Suppose we have given 0.7. This is 7 upon 10. Here 1 0 is in the denominator. So decimal is after the 1 digit. Suppose we have given as such that 0.07. This is 7 upon 100. Here 2 digits, so 2 zeros are put here. 0.007. So this is 7 upon 3 zeros. Why? 1, 2, 3. So decimal are the fraction of 10, 100, 1000 and so on. Okay, children? 10,000, anything. The number expressed in decimal form are called decimal number. One thing is always remember, suppose a number is such that, then we can read it 17.25. The number after the decimal is always read as separate. Not this is 25. This is always read as 17.25, 17.15 and so on. Okay, children? What is the decimal places? These are the decimal places. After 1 digit, after 2 digit, after 3 digit and so on. Next term is like and unlike decimal. Like and just like fractions. Fractions में भी होते थे ना हमारे like fractions and unlike fractions. So here is also like decimal and unlike decimal. Suppose one number 6.03, other number 7.037, another number 5.23, and one we have taken one number 6.1. Here after decimal 2 digit, after decimal 2 digit. So these and these are the like fractions, like decimals. So if the number of digits after the decimal are equal, then these are known as like decimal. And if the number of digits are not equal, these and these are not equal, here is the 3 numbers, here is the 2 numbers. So these 2 numbers are unlike decimal and these 2 numbers are like. These 2 are also unlike. So if the numbers of number equal means children ये नहीं उसकी value equal नहीं होनी है. कितने digit है? How many digits? Here is 2 digit, here is 3 digit, here is 2 digit, here is 1 digit. So 2 digits are known as like decimals and 2 3 digits are known as unlike decimal. Okay, children? इन्हीं से रिलेटेड हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है ना. सिर्फ like और unlike, Ritika, you have to write the like and unlike decimal in your copy. Definition of like and unlike decimal in your copy. Okay. No need to define the what is a decimal. The number expressed in decimal form are called decimal numbers. So there is no need to write the definition of decimal. You have to only write the like and unlike decimal. This is on page number 111. Okay, children. Any problem?
Any problem, children? Audio, video, both are clear, children? अब चलो चिल्ड्रन हम लोग डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बहुत इजी है बच्चों डेसिमल, और मैं इसे क्वेश्चन वाइज समझाती चलूंगी और आप मेरे साथ साथ करते चलना। दिस इज एक्सरसाइज 7A। फर्स्ट ये जस्ट वैसे ही है बच्चों, जैसे आप आपके वर्ड्स और डिजिट्स में नंबर लिखते थे ना, वही सेम चीज है। सिर्फ यहाँ पे डेसिमल आएगा, वहां पे डेसिमल नहीं होता था। आप एक्सपेंडेड फॉर्म सो मेनी थिंग्स लिखते थे, वही सारी कुछ यहाँ भी आने वाली है। अब जैसे पहला है, देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर 58.63। 58.63। अब देखो ये 58 है, तो वी नो दैट इट इज रिटन एज 58.63 एंड दिस इज द आंसर। वेरी इजी चिल्ड्रन, it's very easy na children. You have to write the only this is in the figures. Okay, similarly you have done second, third, fourth, fifth, seventh. 0.015, seventh 0.015. Firstly we have put the point 0.15. This is our answer. Okay children, similarly you have solved question first. Now we have come to the question number second. Write the place value of each digit in each of the following decimals. अब ना बच्चों हम डेसिमल को सीखेंगे प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है ना। अभी तक हमें पता था कि जैसे आपको मालूम है ना, आप 100, 1000 इस तरह से नंबर्स लिखते थे। डेसिमल में क्या है चिल्ड्रन कि जैसे जो डेसिमल के जस्ट नियर वाला नंबर होगा वो 10 नहीं होता, 1/10 होता है। पढ़ा होगा आपने, पता नहीं मालूम मुझे, क्लास में पढ़ा है नहीं। अगर 100 है तो 100th th लग जाएगा। इसी तरह से 1000 है तो 1000। जैसे अगर हम 1/10 लिखते हैं ना चिल्ड्रन, देखो इस तरह से, तो इसको कहते हैं 1/10, मतलब एक का 10th पार्ट। इसको कहते हैं चिल्ड्रन 100th। ठीक है ना। इसी तरह से देखो, सबके ध्यान से देखो, सबके पीछे क्या लग गया है, सबके पीछे th लग गया है। और आगे वाले तो आप जानते ही हो, जैसे 5 और 8 है चिल्ड्रन, सपोज करो, है ना। तो 8 किस वैल्यू पर है और 5 किस प्लेस पर है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये जो है 1 की प्लेस पर है, और ये किस पर है, 10 की प्लेस पर है ना। ये 1 की प्लेस पर है और 10, और डेसिमल में यही 10 बेटा क्या बन जाता है, 10th बन जाता है। दूसरी बात क्या है चिल्ड्रन कि डेसिमल में 1 की प्लेसिंग नहीं होती है, ठीक है ना। डेसिमल में कभी भी ये 1 की प्लेसिंग नहीं होती, वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि अभी तुरंत मैंने बोर्ड पे लिखा था, जो उसका स्टार्टिंग था ना चिल्ड्रन, उसका स्टार्टिंग किससे था, उसका स्टार्टिंग 10 से था। आ रहा है ना सबको समझ में, है ना। अब देखो इसका बनाते हैं सेकंड। प्लेस वैल्यू को 2-3 तरह से लिख सकते हो चिल्ड्रन, है ना। चार्ट को भी बना के लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड का फर्स्ट, ये है हमारा 14.83, है ना चिल्ड्रन, 14.83। तो अब जैसे इसको मैं यहीं से लिखना शुरू करूंगी, प्लेस वैल्यू of
प्लेस वैल्यू ऑफ 1 है ना इक्वल टू क्या है 1/10 1/10 और 1/10 क्या होता है चिल्ड्रन 10। ठीक इसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कहाँ है चिल्ड्रन 4 वंस में है। ये समझते हो ना कैसे बनाते हैं ये लिखते हैं 1 into 10 ये कैसे लिखते हैं चिल्ड्रन 1 की प्लेस है तो 4 into 1 हो गया। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट अब डेसिमल को भी बीच में हम छोड़ देंगे चिल्ड्रन 8 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 अब 8 अभी तुरंत बताई हूँ सबसे पहला जो 8 है वो कहाँ है 8/10 और इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन 8/10 ठीक है ना। अब याद रखना ये इधर से होता है चिल्ड्रन ये एरो ऐसे देखो चल रहा है ना ध्यान रखना तो इसका ये मिनिमम है मतलब ये 10 है ये 1 है ये 10 है इधर उल्टा चलता है बेटा ये 10 है ये 100 है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3 ये हमारा क्या हो जाएगा चिल्ड्रन 300 क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा 10 से स्टार्ट होता है तो 300 है ना टीएच इसमें हम लगा देंगे और चूंकि ये 3 है वहां तो 1 था तो मैंने 100 लिखा था तो 100 हो गया तो ये हो गया चिल्ड्रन 3/100 है ना। अब क्या हो गया सबको एक जगह जोड़ लो चिल्ड्रन दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 4 प्लस 8 यहाँ पर ये नंबर लिख दो 14.83 प्लस 3/100 और ये हमारा हो गया आंसर है ना। आ गया सबको समझ में एक बार आंसर एक का चेक कर लेते हैं चिल्ड्रन 7th का सेकंड का फर्स्ट तो हमें आइडिया हो जाएगा कि तो कौन से फॉर्मेट में इसने लिख रखा है। इसने तो ऐसे ही लिख के छोड़ दिया है चिल्ड्रन ये वाला पार्ट किया भी नहीं है बट हमें आना चाहिए ये आप लोग जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे ना आपको याद होगा वही है ये। हाँ बस वही है चिल्ड्रन कुछ नहीं है। देखो मैं एक बार आपको ये लर्न करा देती हूँ। पहली बात तो ये कि डेसिमल में 1 की प्लेसिंग नहीं होती। फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो वैल्यू ऑफ 1 इन डेसिमल। सेकंड थिंग इज इन विदाउट डेसिमल वी स्टार्ट फ्रॉम this side to this side this is the ones place this is the 10 place okay and so on but after decimal it is just reverse 8 is on the place of 10th 3 is on the place of 100th and so और इस तरफ ये इधर जाएगा। केवल ये याद रखना है चिल्ड्रन कि इसमें 1 नहीं होता इसमें टीएच और अगर 1 है चिल्ड्रन तो सिर्फ टीएच लगेगा और अगर 1 से ज्यादा है तो हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड सो ऑन। सब बच्चों को आ गया समझ में या नहीं बताओ मुझे चैट पे सबको आ गया बेटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इजी है बच्चों है ना और नहीं भी जिनको पहले से आता है तो कोई बात नहीं अभी मैं समझा रही हूँ आप मुझे सुनो इसी से आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख लोगे चिल्ड्रन और ये भी सीख लोगे। अब देखो ये भी थर्ड क्वेश्चन भी सेम है चिल्ड्रन। अब पहले ये बताओ सेकंड का कोई बताऊं और क्या मैं सेकंड का एक बड़ा बता देती हूँ चिल्ड्रन फिफ्थ बता देती हूँ है ना। सेकंड का फिफ्थ बता रही हूँ मैं। सेकंड का फिफ्थ है चिल्ड्रन हमारा 5370.34 ठीक है ना। इधर से भी चल सकते हैं चिल्ड्रन इधर से भी चल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इधर से ही चलते हैं या इधर से चलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस वैल्यू क्योंकि नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना चिल्ड्रन इसलिए इधर से लिखते हुए चलते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 अब देखो 1 10 100 1000 5 इज या इक्वल का साइन लगा लो जैसे पहले लगाई थी 5000 है ना
5000 and this is equal to 5 per 10 0. Okay. अब place value of 3 equal to 3 hundreds है ना, 3 hundreds and this is equal to children 300. Place value of 7 equal to 7 tens and this is equal to 7. Place value of 0 equal to 0 ones, so this is 0. Place value of 3 equal to 3 tenths, so this is equal to 3 upon 10 and place value of 4 equal to 4 hundredths, so this is equal to 4 upon 100. तुम्हारे तो यही हो गया बेटा। और अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना चिल्ड्रन, इसमें बस इतना ही पूछ रहा है, कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। और जब इसी को थर्ड क्वेश्चन में जब हम करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ तक तो कॉमन होगा और उसके बाद जैसे पहले सिखाई थी ना 5370.37, इसको सेकंड में करने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, सेकंड में सिर्फ प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। और थर्ड के लिए मैं सबको कंबाइन करूंगी, जैसे ऐसे 5000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 0 प्लस 3/10 प्लस 4/100, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन में लिखना है मुझे, सेकंड में सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख के खत्म कर देनी है। सबको आ गया समझ में? हाँ, ये रितिका, ये जो फॉर्मेट है ना बेटा, ये वाला फॉर्मेट थर्ड क्वेश्चन में मांग रहा है। थर्ड में कह रहा है ना राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, सेकंड में ना सिर्फ यही लिख के छोड़ देना है, प्लेस वैल्यू में बता देना है कौन 10 की जगह पे है, कौन 100 की जगह पे है, कौन 1000 की जगह पर है, ये हमें सिर्फ बताकर छोड़ देना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? कर लो तो बोल देना चिल्ड्रन, फिर मैं फोर्थ बताऊंगी। बहुत इजी सा एक चैप्टर है बच्चों, ऑलमोस्ट आप समझ लियो। इसमें सिर्फ कंपेयर और लाइक अनलाइक आपको मुझे बताना है, वो भी मैं समझा चुकी हूँ आपको। डन ना? ओके, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो कर लोगे चिल्ड्रन, सेम है यही। अगर कोई पूछना है तो पूछ लो मुझसे, कोई बताऊं मैं सेकंड या थर्ड में से, तो चैट कर दो, मैं वो बना दूंगी आपका। सेकंड या थर्ड में से किसी में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नहीं है ना? अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखो चिल्ड्रन, फोर्थ क्वेश्चन करना है। अब उल्टा हो गया बेटा, पहले हम लोगों ने एक्सपैंड किया, डेसिमल मिला था, अब हमारे पास एक्सपेंडेड है चिल्ड्रन और मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, है ना। We have to convert the expanded form in decimal form. So question number 4, and this is the first question. 40 plus 6 plus 7 upon 10 plus 9 upon 100. Okay children, एक बार मैं इसको आपको सिखा देती हूँ। This is equal to 40 plus 6 plus children 1 placing, so this is 0.7, and this is the 2 placing, so this is 0.09. Now we have 40 and 6, 46 plus 0.79, and this is equal to 46.79. This is the easiest method children, it's very easy. आराम से हम लोग क्या करते हैं, प्लेसिंग को देख देख कर
इधर तो कोई झंझट ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट भी 46 लिख सकते थे, है ना। इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये। और फिर देखो डेसिमल का एडिशन में बता देती हूँ चिल्ड्रन, यहाँ देखो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगता है, यूं। ये नहीं कि आप इसको इधर उधर सरका लो, अभी सीखेंगे हम इस एक्सरसाइज में चिल्ड्रन, बट अभी यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि जब भी हम ऐड करते हैं चिल्ड्रन तो हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है, ये नहीं कि हम उसको आगे पीछे करके लिख लें, है ना। आ गया समझ में। देख लेते हैं अलग अलग आंसर है या एक साथ आंसर है। अब ये बड़ी क्लासेज में ये सब नहीं करने को आती चिल्ड्रन हमें कभी भी, हमें हमेशा डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है, बस वही है। इसने तो पीछे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है चिल्ड्रन, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन करके समझा दिया, है ना। नहीं रितिका, मैं डायरेक्ट लिखना मैं भी सिखा सकती थी बेटा, मैं डायरेक्ट सिखा सकती थी आपको लिखना, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे ये ये स्टेप मिस भी करते हो चिल्ड्रन, ये स्टेप तो ये दोनों जरूर लिखना। इससे क्या है ना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। जब हम बड़ी क्लास में भी आ जाते हैं ना तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन इनमें, तो इसलिए ना हम यहाँ पे सीखेंगे चिल्ड्रन इसी तरह के फॉर्मेट में लिखना। दिक्कत है लिखने में आप लोगों को तो बताइए, मुझे नहीं समझ में आता हो तो। ठीक है, अब आप लोग ही बताओ, इसके तो इजी है सारे बच्चों, और कोई बताऊं मैं इसका। चलो मैं इसका सेकंड बता देती हूँ, है ना, सब इजी है बेटा, बड़ा आसान सा एक्सरसाइज है। सेकंड ये है बच्चों 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 1/100 और प्लस 6/1000। इनको तो एक साथ बच्चों प्लस कर लेना, ये तो हो गया 5 7 8, है ना। इसको लेकिन ऐसे करना, ये क्या हो गया 0.3 प्लस 0.01 प्लस 0.006, और ये अब सब मिलकर हो गया चिल्ड्रन 578 प्लस 0.316 एंड दिस इज इक्वल टू 578 डेसिमल। अभी तो इसने डायरेक्ट लिखने को कहा है चिल्ड्रन, लेकिन मैं जानकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ओके चिल्ड्रन, अब इसी तरह से इसके 6 के 6 हैं, है ना। अब ना मैं चिल्ड्रन अभी आपको मैंने समझाया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, अब ना मैं अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ चिल्ड्रन। मैं आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करना सिखा रही हूँ, हाउ वी कैन कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, ये फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले भी बता रही हूँ। फिफ्थ का फर्स्ट है 7.5 और 64.23 एंड नेक्स्ट वन इज 0.074। अब एक चीज पहले, इसको समझाने से पहले एक चीज चिल्ड्रन मैं बता देती हूँ आपको, डेसिमल के पहले हम जीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि अगर आप डेसिमल के पहले जीरो पुट कर देते हो चिल्ड्रन तो वहां पे क्या होता है कि वो 100,000 की प्लेसिंग उसकी बदल जाती है। लेकिन डेसिमल के बाद हम चाहे कितने जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास 0.7 है तो मैं इसको 0.70 0.700 0.700 कुछ भी लिख सकती हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सबका मतलब एक ही है 0.7। सो वी हैव पुट any so many zeros after the decimal, but we doesn't put that zeros before, because if we have put 0.07 so this becomes 7/100, 100th part of 7 and this is the 10th part। अब इसका मतलब समझो ना चिल्ड्रन क्या है, जैसे आप सपोज करो एक पिज्जा लेकर आए हो,
एक बार एक पिज्जा को आपने 10 पार्ट में बांटा, ठीक है ना, आप इस तरह से 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो सपोज करो हर को इतना छोटा टुकड़ा मिला। अब अगली बार अगर पिज्जा को 100 पार्ट में बांट दें चिल्ड्रन, तो वो कितना छोटा हो जाएगा, सोचो आप कितना छोटा हो जाएगा। तो यही है, तो हम पीछे 0 लगा सकते हैं चिल्ड्रन, बट बिफोर 0 हम आगे नहीं लगा सकते, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7.5 है ना, इसमें मैक्सिमम डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो मैं इसके पीछे लगा दूंगी चिल्ड्रन 20। ये है 64.23, तो इसको मैं लिखूंगी 64.230, और लास्ट वाला तो है ही है चिल्ड्रन 0.074, दिस इज 0.074, और ये बन गया हमारा लाइव डेसिमल। बहुत इजी है ना चिल्ड्रन, अपन ने कितने वर्क्स प्रॉब्लम किए हैं, उनके कंपैरिजन में ये कितना इजी है, देखो, है ना। सबको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? दर्शिका बहुत छोटा हो गया, अगर हम 100 पार्ट बांट देंगे ना, तो बिल्कुल ही बस मुंह में उठा के खाने लायक भी नहीं रहेगा। सब बच्चों को समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से? सही बात है दर्शिका, 100 पार्ट करने के बाद तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि हमने खाया भी या नहीं खाया, क्योंकि हमारे मुंह में उसका टेस्ट भी नहीं आएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, हम लोग 6th बनाते हैं, है ना। अब मैं आपको सिखाऊंगी हाउ वी कैन आइडेंटिफाई which decimal number is greater and which decimal number is smaller और which are equal। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, कौन छोटा है और कौन इक्वल है ना। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स का फर्स्ट करते हैं चिल्ड्रन, हम लोग अभी भी विदाउट डेसिमल नंबर में भी हम लोग बॉक्स के अंदर भरते थे ना। अब देखो बताती हूँ चिल्ड्रन कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको जब देखो चिल्ड्रन, तो इस डिजिट को देखो कितने डिजिट का नंबर है, तो दिस इज 2 डिजिट नंबर, दिस इज आल्सो 2 डिजिट नंबर। ओके, so firstly you have see the 10 place, in 10 place this is 8 and this is 7, here 8 is greater than 7, therefore 84.23 is greater than 76.5। बहुत इजी है। अब सपोज करो चिल्ड्रन, मैं एक इसमें एग्जांपल लेकर बताती हूँ। ये तो हो गया, इजी था। अब देखो सेकंड बता रही हूँ। सेकंड में है चिल्ड्रन, इसी में सब समझ जाओगे। 7.608 एंड दिस इज द ब्लॉक एंड 7.68। अब देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो कोई बड़ा छोटा पता नहीं चला। अब हम आफ्टर डेसिमल आ गए चिल्ड्रन, ये दोनों भी 6 और 6 क्या है, इक्वल है ना। अब बताई हूं ना मैं, ये 3 डिजिट है, तो पहले तो इसको 3 डिजिट में बदल लो। 608, ये यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, सेट 0 कर लो, यहाँ मत करो, ये क्वेश्चन है ना। और अब हम क्या करें, अब देखें, देखो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 7, 0.6 is equal to 0.6 and now 0.60 and इधर 0.68, ये बड़ा है देखो 68 और ये 0, मतलब इधर 0 है बेटा और इधर 8 है, तो ये क्या है, बड़ा है, तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे इस तरह से, है ना। ये 608 है और ये 680 है। आ गया समझ में?
जस्ट ए मिनट, मुझे कुछ डाउट लग रहा है चिल्ड्रन इसमें। ठीक है चिल्ड्रन, करेक्ट है ये। ठीक है ना। अब इसी तरह से सबको देख सकते हो। अब जैसे इसमें एक और बता देती हूँ मैं। 6 तो बहुत इजी है चिल्ड्रन। 5th में देखो वो 850 हो जाएगा और पीछे 805 होगा, तो 850 इज ग्रेटर देन 805। ओके, सो दिस नंबर, इसको ऐसे समझो चिल्ड्रन, जैसे तुम बाजार में गए, मान लो तुम्हें दुकानदार ने 15 रुपीज 25 पैसे लौटाया, है ना, या तुमको 15.50 लौटाया, या तुम्हें 15.75 लौटाया, तो क्या है, ये सबसे बड़ा है ना, क्योंकि ये बड़ा है, उससे ये छोटा है। अगर मुझे इसको अरेंज करना हो तो मैं कैसे अरेंज करूंगी, दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस। कैसे हमने डिसाइड किया चिल्ड्रन, देखो इसमें ये सबसे बड़ा है, और फिर जब हम इधर आ गए तो देखो यहाँ पे ये 50 है और ये 25 है। तो अब ये नहीं देखना है बेटा, ये डेसिमल जरूर लगाना, 0 नहीं बड़ा होता 8 से, लेकिन अब ये एक समान का कोई पार्ट नहीं हुआ, और ये एक समान के 10 जैसे इसका मतलब क्या होता है कि हमने 8 थी और इसको हमने 10 पार्ट में बांट दिया। तो जितने छोटे टुकड़े करते चले जाते हो, जैसे अभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम वो तो मुंह में पता ही नहीं चलेगा, तो जितना ज्यादा हम उसके पीसेस बनाते जाएंगे चिल्ड्रन, वो उतना छोटा होता चला जाएगा। तो डेसिमल के बाद क्या होता है कि डिजिट जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती है चिल्ड्रन, अब जैसे 75 है, 100 है, तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बड़ा है हमारा और कौन छोटा। सबको समझ में आ गया बेटा? एक बार चैट कर दो मुझे। नेक्स्ट यही है बच्चों, जो मैंने भी आपको अरेंज करना सिखाया, अभी सिखा देती हूँ। सबको आ गया ना समझ में? ओके चिल्ड्रन। एक मैं और बता देती हूँ बेटा, असेंडिंग बता दूंगी तो डिसेंडिंग भी कर लोगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग सेम ठीक है, एक बार छोटे से बड़ा और एक बार बड़े से छोटा, है ना। अब मैं ना इसका जो सबसे अटपटा सा क्वेश्चन है ना बेटा, 7th का 4th बता रही हूँ आप लोगों को। 7th का 4th 3.3 3.303 फिर 3.033 then 0.33 and last one is children 3.003। है ना चिल्ड्रन, सबसे पहले हमें सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, उसके बाद हम उसको आराम से कंपेयर कर सकेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए जो मैक्सिमम डिजिट है हमारी पीछे की वो 3 है, तो 3.3 इज इक्वल टू 3.300, और ये तो है ही है 3 डिजिट में चिल्ड्रन, 3.303 3.303, उसके बाद 3.033, this is 3.033, next one is 0.33, so this is equal to 0.330, and last one is children 3.003, so this is written as 3.003। अब देखो चिल्ड्रन, इसको कौन से फॉर्मेट में हमें लिखना है, तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन छोटे से बड़ा। अब इनमें देखो, अब इन सब में देखो चिल्ड्रन 3333 है, मतलब सबसे छोटा कौन है, ये है, तो सबसे पहले आ गया, ऐसे नंबरिंग करते चलना, 1 नंबर पर ये आ गया। अब देखो सब में 3333 बराबर है चिल्ड्रन, है ना, तो अब डेसिमल के बाद आ जाते हैं, तो डेसिमल के बाद देखो सबसे छोटा ये है, तो इसके आगे लगा लो।
अब नेक्स्ट चलो चिल्ड्रन, 2 का तो काम खत्म हो गया हमारा। अब आ जाओ, अब आ जाओ, कहाँ जाते हैं हम लोग? सबसे छोटा ये था चिल्ड्रन, उसके बाद हमारा ये आ गया है ना। अब हम आ जाएं तीसरे नंबर पर। तो देखो तीसरे नंबर पर जब हम आ रहे हैं चिल्ड्रन, तो ये और ये सेम तो थे, लेकिन इसके बाद 0 था चिल्ड्रन, और इसके बाद क्या था? 3। तो ये आ गया थर्ड पे। उसके बाद देखो यहाँ 0 है, तो ये आ गया फोर्थ पे चिल्ड्रन, और ये सबसे बड़ा है fifth पे। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर किया है चिल्ड्रन, छोटे से बड़ा। अब हम लिख लेंगे 0.330 इज लेस देन सेकेंड 3.003, and this is less than 3.033, and this is less than 3.300, and this is less than 3.30, है ना। और यही हमारा आंसर हो गया। आ गया ना समझ में सबको बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फर्स्टली वी हैव चेंज इट इन लाइक फ्रैक्शन, एंड देन वी हैव डिसाइडेड विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस चिल्ड्रन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन। तो आप लोग होमवर्क में ये 7 चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ओके चिल्ड्रन, इट्स वेरी इजी। होमवर्क में कंप्लीट एक्सरसाइज 7। अगर इसी को डिसेंडिंग करना हो चिल्ड्रन, तो डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 3.303, देन 3.300, देन 3.033, देन 3.003, एंड लास्ट वन 0.330। हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो इजी है चिल्ड्रन, हमें एक बार इसको सेट करना आना चाहिए। देन वी हैव डिसाइडेड इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नंबर। ओके चिल्ड्रन।